Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini. In this video, we are going to continue our MCQ series of marketing management. So just let's get started with the first question, that is question number 201. Okay, so the first question is a digital analog of various form of payment backed by a bank or a financial institution is. So the correct answer is ETB. The full form of ETB is exchange trade traded treasury bond. Okay, so the next question is, does involve someone masquerading as someone else? But first of all, you need to know that what is masquerading. Masquerading is basically when someone pretend to be someone else. यानी कि जो यहाँ पर जो बंदा असलियत में होता नहीं है वो प्रिटेंड करता है वो बंदा होने की यहाँ पर। सपोज मैं किसी की आईडी चला रहा हूँ यहाँ पर और आईडी में अगर मैं यहाँ पर किसी की चलाती हूँ तो आई विल प्रिटेंड आई एम द ओनर, आई एम द real person who has the ID. Okay, so this is masquerading. So the correct answer is it is known as phishing. Next question is, when information about transactions is transmitted in transparent way, hackers can catch the transmission to obtain customer saving sensitive information. This is known as unauthorized disclosure. A competitor or an unhappy customer can alter a website so that it refuses services to potential client. This is known as, so the correct answer of this is unauthorized action. Question number 205. It is a specialized form of online identity theft. The correct answer of this is phishing. 206. The private content of a transaction, if unprotected, can be intercepted when it goes through the route over the internet is called eavesdropping. Next question is, dash can be used to minimize the risk of security breaches or viruses. So the correct answer is your firewall. Firewall क्या होता है आपका? It is both the hardware and the सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों होते हैं। ये आपका एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी कोई भी डिवाइस होती है उसमें किसी भी तरीके का रिस्क को ये एंटर ही नहीं करने देता है यहाँ से। Next question is, dash is an electronic file that uniquely identifies individuals and websites on the internet and enables secure confidential communication. So that is your digital certificate. Then the next question, dash is a security protocol based on digital certificate. So the correct answer is secure electronic transaction. Next question, dash is a computer crime in which criminals breaks into a computer system for exploring details of information and etc. So the correct answer is your hacking. 211, marketing is a process of converting the potential customer into actual customer. Okay. Question number 212. The concept is based on the principle that marketing is not a department but it is a pervasive throughout the company. So the correct answer is holistic. Holistic मतलब होता है आपका complete, all over. Question number 213. Dash simply refers to product planning. इसमें से product planning आपका किसको बोला जाता है? So the correct answer is your merchandising. Question number 214. Branding is a function of. So branding is a function of facilitating. Question number 215. Market where currencies of different countries are bought and sold. जहाँ पर आपकी different countries की currencies को खरीदा और बेचा जाता है, so वो आपकी कौन सी market होती है? Foreign exchange
मार्केट, मार्केट वेयर डिमांड फॉर गुड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जहाँ पर जो आपकी डिमांड रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है तो ये आपकी कौन सी मार्केट होगी, सेलर मार्केट होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी सेल भी ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो ये कौन सी मार्केट हो गई, आपकी सेलर मार्केट हो गई। मार्केट वेयर शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर आपकी कंपनी के शेयर और बॉन्ड्स को यहाँ पर खरीदा बेचा जाता है, वो कौन सी मार्केट होती है, आपकी स्टॉक मार्केट होती है आपकी। 218 मार्केट इन विच सप्लाई इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है, आपकी सप्लाई यहाँ पर डिमांड से ज्यादा है, तो ये कौन सी मार्केट होगी, आपकी बायर्स मार्केट। A person who purchases a product or services either for his own consumption or for other is known as, तो वो कौन होते हैं, आपके कस्टमर, जो क्या करते हैं चीज़ों को, अगर यहाँ पर एक चीज़ याद रखोगे आप, अगर यहाँ पर पर्सन हु की परचेज की जगह आता कंज्यूम, तो वो हो जाता है आपका कंज्यूमर। सब छोटे छोटे पॉइंट को इनको ध्यान रखोगे क्वेश्चन के अंदर। बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय परचेजिंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कौन सा बिहेवियर होता है, आपका कॉम्प्लेक्स बाय बिहेवियर, क्योंकि उस टाइम पर क्या रहते हो आप, थोड़े कंफ्यूज होते हो चीज़ों को खरीदने में, और बेसिकली जब आप किसी महंगी चीज़ को खरीदते हो तो वहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो दैट इज योर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशनल मोटिव, इसमें से इमोशनल मोटिव आपका कौन सा नहीं है, सो दैट इज वैरायटी, बिकॉज सोशल एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी, ये सॉरी वैरायटी, बाकी ये सारे क्या हैं, आपके इमोशनल मोटिव हैं। द नेगेटिव फीलिंग विच अराइज आफ्टर परचेज कॉजिंग इनर टेंशन इज नोन एज, तो वो क्या रहता है आपका, उसको आप बोलते हो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मार्केट कॉग्निटिव डिसोनेंस, पोस्ट परचेज डिसोनेंस का मतलब भी क्या होता है, आपका एक तरीके से टेंशन में किसी चीज को ना मानना या किसी चीज को एग्री नहीं करना, और बायर रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब भी क्या होता है, पछतावा होता है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, तो ये तीनों ही क्या है, आपकी नेगेटिव फीलिंग है, सो द करेक्ट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब होता है आपका सेम कैटेगरी में, होमोजीनियस सब सेक्शन ऑफ कस्टमर इज नोन एज, जब आप चीजों को यहाँ पर डिवाइड कर देते हो तो आपका इस चीज को आप क्या बोलते हो, मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंट क्या होता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट आपने ग्रुप के अंदर यहाँ पर अपने मार्केट को डिवाइड कर दिया है। द स्ट्रेटेजी वेयर द प्रोड्यूसर और मार्केटर डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, यानी कि एक ही मार्केट हो, सारी मार्केट के अंदर आप क्या करो, चीजों को बेच रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का आप सेगमेंटेशन, देखो सेगमेंट क्या होगा, ये आपकी फुल मार्केट है, अगर ये फुल मार्केट है तो यहाँ पर क्या है, आपकी अनडिफरेंशिएट मार्केट है, इसी के अंदर आप ग्रुप बना देते हो, यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर मेल, यहाँ पर एडल्ट, आपके यहाँ पर छोटे चिल्ड्रंस आ गए, तो आपने ग्रुप को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज में। यहाँ पर अगर फीमेल है तो होमोजीनियस होगा ये, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी आपकी फीमेल कैटेगरी है, तो ये वाला क्या रहा आपका मार्केट सेगमेंटेशन। और अगर इस चीज को आप किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं करते हो, यहाँ पर मार्केटर जो होगा आपकी मार्केट को किसी भी टाइप के कस्टमर्स के अंदर डिवाइड डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो दैट इज नोन एज योर अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। Next question is 225. The concentration of all marketing efforts on one selected segment within the total market is your concentrated market. 226. Identifying and providing different marketing mix for each of the segment is known as the differentiated market. देखो differentiated marketing mix आपको बोला ना, और each segment के लिए तो क्या होगा आपका differentiated marketing. क्वेश्चन नंबर 227, सर्विंग अ स्मॉल मार्केट नॉट सर्व बाय अ कंपटीटर इज नोन। देखो स्मॉल मार्केट क्या होती है आपकी, निश मार्केटिंग बोल देते हो जिसे, जिसमें क्या करते हो आपने कंपनी को यहाँ पर सेगमेंट किया, अगर ये वाला सेगमेंट फीमेल वाला सेगमेंट आप ले लो, इसके अंदर भी एक छोटा सा सेगमेंट आपने लिया, उसको आपने क्या किया है यहाँ पर टारगेट किया है। The process of assessing the relative worth of different market segments and selected one or more segment in which to compete is your, कि आप क्या करो, जो आपने यहाँ पर सेगमेंटेशन बनाया कि अपने प्रोडक्ट को आपने किस किस सेगमेंट के अंदर यहाँ पर एडवर्टाइज करना है, बेचना है, या फिर कहाँ पे आपने कंपटीशन करना है, क्या स्ट्रेटेजीज कैसे लगाने हैं, तो ये क्या होता है आपका टारगेटिंग मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organization direct its marketing efforts at two or more segments by developing a marketing mix for each segment. So the correct answer is your मल्टी स्टेज सेगमेंट, जहाँ पर ये आएगा ना आपका टू और मोर सेगमेंट, तो वो क्या हो जाएंगे आपके मल्टी सेगमेंट अप्रोच।
Next question, the act of creating an image about a product or brand in the customer mind is known as positioning. जब आप किसी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में, आइटम के बारे में आपने यहाँ पर अपने कस्टमर्स में, कंज्यूमर्स के माइंड को सेट कर दिया, उस चीज़ को लेकर एक इमेज सेट कर दिया, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो? पोजिशनिंग. Positioning by emphasizing the special attributes and benefits of the product is known as positioning by product attributes and benefits. विच इज़ नॉट अ लेवल ऑफ ब्रांड लॉयल्टी. ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? जब आप किसी एक ही प्रोडक्ट को, एक ही ब्रांड से आप अपनी क्या करते हो? शॉपिंग करते हो, दूसरे प्रोडक्ट को आप प्रेफर नहीं करते हो उसके सामने, या प्रेफरेंस नहीं देते. तो अगर ब्रांड लॉयल्टी है तो प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, ब्रांड की उसकी पहचान होगी, आप उसी ब्रांड को हर बार इंसिस्ट करोगे कुछ भी खरीदने के लिए यहाँ पर. तो इसमें से जो ब्रांड इक्विटी होते हैं यहाँ पर, ब्रांड लॉयल्टी का इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता. देन द करेक्ट आंसर इज योर ब्रांड इक्विटी. Trading up is a method of product line modification by quality variation. Goods are purchased without any planning or such efforts is your impulse goods. इसको क्या करते हो? इसको खरीदने के लिए आपको किसी भी तरीके की प्लानिंग या फिर सोचना यहाँ पर नहीं करता, या फिर ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होते हैं? आपके नॉर्मली लाइफ में डेली यूज होते हैं, ये आपके आसपास की जगहों पर इजीली मिल जाते हैं. स्टेपल गुड्स क्या होते हैं? जो आपके कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, जो आपके यहाँ पर बोलते हैं नेसेसिटीज जो आती हैं आपकी, वो क्या होते हैं? आपके स्टेपल गुड्स होते हैं आपके. जैसे कि आपने बोलो मिल्क हो गया आपका, रोटी हो गई आपकी, गेहूं हो गया आपका. तो these are called your staple goods. Revival plans to introduce the product in more modified form is adopted in decline stage. यहाँ पर क्या होगा? ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है इस तरीके से, जहाँ पर होती है आपकी इंट्रोडक्शन, यहाँ होती है ग्रोथ, यहाँ होती है आपकी मैच्योरिटी, देन होता है आपका डिक्लाइन. अब देखो, जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगेगा, तो अगर आप इसके अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करोगे, कुछ डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होता जाएगा, और आपको एक टाइम पर अपनी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, या फिर इस प्रोडक्ट को बनाना ही आपने स्टॉप कर देना पड़ेगा. तो ये स्टेज को आप इस तरीके से, लास्ट स्टेज ना बन जाए आपकी बिल्कुल ही, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम करनी है. सो द करेक्ट आंसर इज योर डिक्लाइन. आफ्टर सेल सर्विस इज अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. इसके अंदर क्या होते हैं? आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि आपको वारंटी मिल गई, आपको होम डिलीवरी मिल गई चीज़ों की. यहाँ पर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं. सेटिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज, टोटल कॉस्ट के ऊपर जब आप प्राइस को सेट करते हो, तो वो क्या होता है? आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. ओके. सेटिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज नोन एज. कंपटीशन के उस पर रखोगे तो कम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग. When a firm set a very low price for one or more of its product with the intention of driving its competitors out of business, तो ये क्या हो जाता है? आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. जब क्या करती है फर्म? अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या करती है? लो रखती है यहाँ पर. तो दिस इज नोन एज योर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, razor manufacturer will charge a low price and recoup its margin from the sale of the only design of blades which fits with the razor. This is an example of your psychological. ये भी, इसका भी क्या आंसर होगा आपका? psychological pricing. Where sellers combine several products in the same package is known as. तो ये क्या होते हैं आपके? जब आपके सेलर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पैकेज के अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या होता है आपका? प्रमोशनल प्राइसिंग. यहाँ पर आप बाकी प्रोडक्ट जिनको आप डाल रहे हो उनके साथ उनको क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो यहाँ पर आप. When there is a large potential market for a product, the firm will adopt premium price policy. क्योंकि लार्ज पोटेंशियल मार्केट है आपकी, यानी कि अच्छे खासे लोग वहाँ पर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उस मार्केट के अंदर. तो वहाँ पर कौन सी पॉलिसी आएगी आपकी? प्रीमियम प्राइस पॉलिसी. A price reduction to buyers who pays their bill promptly is called. Promptly मतलब on the spot. अगर आपने कोई सामान खरीदा है यहाँ पर, उसके साथ के साथ पेमेंट कर दी है आपने, तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज नोन एज योर कैश डिस्काउंट. अगर आपने यहाँ पर ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करी और चीज़ों को आपने क्या खरीदा है? बल्क के अंदर खरीदा है, तो आपको क्या मिलेगा? वो मिलता है आपको ट्रेड डिस्काउंट. Dash is a system of selling goods directly to customers through a network of self-employed people. So the correct answer is your multi-level marketing. The word channel is derived from the French word that is known as your canal.
Dash refers to duplicating the brand image of one product or promote another product of the same brand is known as your, इसको क्या बोलते हो आप, surrogate advertising। जब आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ क्या कर देते हो, यहाँ पर कंबाइन करके उसको एडवर्टाइज कर देते हो आप। Dash means placement of company product or products in the mind of target consumers related to the competitive product. So the answer of this question is product positioning। मैंने आपको बता दिया था कि कंज्यूमर्स के दिमाग में एक चीज को बिठा देना, अपने प्रोडक्ट की एक इमेज रेडी कर देना, उसको आप बोलते हो पोजिशनिंग। Many companies are now turning their attention to dash markets। अब जितनी भी आपकी कंपनीज है वो रूरल मार्केट की तरफ भी क्या दे रही हैं, ध्यान दे रही हैं। अब मार्केट लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ रीजन स्पेशलाइजिंग इन फ्यू क्रॉप्स लाइक बनाना, अनियंस एटसेट्रा आर कॉल्ड। तो ये कौन सी मार्केट्स होती हैं आपकी, सीजनल मार्केटिंग। रूरल कंज्यूमर्स आपके कैसे होते हैं, बेसिकली दे आर प्राइस सेंसिटिव। सो दिस इज ऑल द 50 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन इन दिस वीडियो। If you found this video helpful, then don't forget to like, share, comment and subscribe my channel Bright Aspirants. Thank you guys. Thank you so much.